School Waltengu. We are going to start a new chapter today. It is self-management skills. It is for class 10th level 2. We have already finished a chapter that is known as communication skills. Now we will start a new chapter. It is self-management skills, and today's topic is basics of self-management. Let's start today's topic. Self-management skills. Self-management skills जो ये टाइटल है, इसका मतलब है खुद के कामों को मैनेज करना, गोल्स को मैनेज करना, इमोशंस और एबिलिटीज को मैनेज करना. सेल्फ मैनेजमेंट का मकसद ही है, और इसको हम कहते ही है सेल्फ कंट्रोल, खुद पे काबू. और जो खुद पे काबू रख सकता है, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रख सकता है, अपनी थॉट्स पे, बिहेवियर पे, जो अपना बिहेवियर, सोच जो है, जो इसे अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकता है, वो एक मोटिवेटेड बंदा होता है, मोटिवेटेड पर्सन होता है. सेल्फ मैनेजमेंट में हम अपने मंजिल, गोल जो होती है, वो तय करके रखते हैं और उसी राह या गोल की तरफ हम बढ़ते रहते हैं. अक्सर ये देखा गया है, जिनके पास कोई गोल होता है वही ज़्यादा तरक्की याफ्ता लोग होते हैं, और जो जिनके पास कोई गोल नहीं होता है, कोई पर्पस नहीं रखते अपने साथ, तो उनमें ये देखा जाता है कि वो डायरेक्शन लेस होते हैं. उनमें कोई डायरेक्शन, कौन सा काम कब करना है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता, जब चाहे कुछ कर लिया. तो इस तरह वो अपने आप को मोटिवेट भी नहीं रख पाते कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, अपनी सिचुएशंस पे कंट्रोल है कि नहीं है. तो इस तरह जो इंसान अपने आप को एक मैनेजेबल या डिसिप्लिन के साथ अपने आप को रखता है, कंट्रोल रखता है अपनी जो है अपने आप पे, अपने इमोशंस पे, थॉट्स पे, और अपना एक गोल जो है वो रखता है. गोल रखने का मतलब ये नहीं है, गोल रखने का मतलब है अगर आप जो है बिजनेसमैन हो तो आप बिजनेस की तरफ भी ध्यान देते हैं, फैमिली की तरफ एक जो है कंट्रोल में एक स्टेबिलिटी पैदा करते हैं, ताकि आपकी फैमिली भी सफ़र ना हो और आपका बिजनेस भी सफ़र ना हो. इसी तरह आपका जो है फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, वो आप देखते हैं. तो जितने भी आप गोल बना के रखते हैं, अगर आप उस डायरेक्शन में चलते हैं तो आगे जाके सक्सेस ही हाथ आती है. तो बेटर इज दैट यू शुड कीप योर गोल within your ability and control your thoughts, emotions and all those things. Basic things in self-management. जो सेल्फ मैनेजमेंट में कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, उनको हम यहाँ पे हाईलाइट थोड़ा करते हैं, डिस्कस करते हैं. क्या बुनियादी चीज़ें जिनकी तरफ आपको तवज्जो रखनी है, फोकस रखनी है. फर्स्ट थिंग इज दैट self-awareness. You should keep yourself in a condition that you are aware about everything, and you should be aware about everything in your life, in your business, in your education. So it is better to keep yourself on focus, so that you can get things on time and you can do everything with calm and control. Second thing is responsibility. You should be responsible person. In whether you are a professional or a student, you should take your responsibility and you should perform your job, home duties on time and manage everything in your whole things. I mean, whether it is your office or your home. Or you, as now, if you are a student, right now you are a student, so you have to manage everything, the responsibility given by your parents, the responsibility given by your teachers, so you have to do accordingly. Third compulsory thing is time management. As a student, you should know how to manage your time, how to do each and everything in time-bound manner.
So keep your eye on time and do everything in time management cycle. And last but not least, it is adaptability. You should be keep ready to adapt yourself in any environment or in any. Um, it can be a good environment. It can be a hard environment. You should adapt yourself according to your work culture, according to your education system, according to your um, needs, and according to your financial availability. Stress and stress management. मैनेजमेंट स्किल्स में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में आपका ये टॉपिक जो ये स्लाइड है स्ट्रेस पे है. आपको ये जानना जरूरी है स्ट्रेस क्या है. व्हाट इज स्ट्रेस. यहाँ पे पहले एग्जांपल जान लेते हैं. Stress can be defined as our emotional, mental, physical and social reaction to any perceived demands or threats. These demands or threats are called stressors. Stressors are stress, the reason for stress. यानी स्ट्रेस का मतलब होता है जब आपका दिमाग तनाव में हो, जब आपकी जो मेंटल हेल्थ वो तनाव में हो, आप इमोशनल हो, या कभी कभार बॉडी जो है आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेसफुल हो सकती है. आपने ज़्यादा जो है काम किया और इससे बॉडी पे स्ट्रेस आ सकता है. सोशल स्ट्रेस हो सकता है. अब ये स्ट्रेस क्या है. स्ट्रेस कई तरह के आते हैं. फॉर एग्जांपल आप जो है आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा होगा, यानी एजप्शन कर ले तो कि मैंने एक काम किया अब मुझे ऐसा इसका रिजल्ट मिलेगा, मगर वैसा नहीं हो पाता तो आपको आप पे दिमागी तनाव आता है. यानी स्ट्रेसर जो है वो आप पे स्ट्रेस आता है और आपके दिमागी तनाव आता है. आप वो चीज़ नहीं कर पाते तो इससे आपके मेंटल स्ट्रेस आती है, इमोशनल स्ट्रेस आता है. स्ट्रेस बहुत सी चीज़ों से आ सकता है. फैमिली से स्ट्रेस आ सकता है. अगर आपने पढ़ाई नहीं की और आप एग्ज़ाम ऐसे देने गए, लास्ट में रिजल्ट आया फेल, तो स्ट्रेस आ सकता है. आप स्मार्टफोन्स का यूज़ कर रहे हो, रात दिन आप जो है एंड्रॉयड फ़ोन्स पे हो और आपको वहाँ से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इससे आपकी एजुकेशन में भी फ़र्क पड़ रहा है, आपकी नींद में भी फ़र्क पड़ रहा है, तो आपका सेहत जो है वो ख़राब हो रहा है, आपकी एजुकेशन ख़राब हो रही है. तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन स्ट्रेसर बना, तो क्योंकि इसने आपकी एजुकेशन ख़राब की और इसने आपका हेल्थ ख़राब किया, क्योंकि आपने इसको ऐसे यूज़ किया जैसे नहीं करना था, इसको डिसिप्लिन में नहीं किया, मैनर में नहीं यूज़ किया, अनकंडीशनल यूज़ करते रहे और इससे आपकी लाइफ भी ख़राब हो गई, आपका एग्ज़ाम रिजल्ट भी ख़राब आ गया. तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल बताई है कि अगर जैसे यू आर टू क्लोज टू एग्जाम्स बट फील अनप्रिपेयर्ड, आप महसूस करते हो कि आप अनप्रिपेयर्ड हो, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो फेल हो गए. जैसे मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में कहा कि टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है. अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हो तो आप पे स्ट्रेस नहीं आएगा. इसीलिए प्लानड गोल रखना है ताकि आपका एक मकसद हो, एक रास्ता हो, तो आप आपके एक सक्सेसफुल बन सकते हो. स्ट्रेस आप पे नहीं आएगा. स्ट्रेस यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, जैसे आपने कुछ कपड़े पहने हो, आपको लगता है कि लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, ये आपको जो है तब ये ड्रेस आपके लिए स्ट्रेसर बन जाएगा और आप पे स्ट्रेस आएगा. स्ट्रेस बहुत सी चीज़ों का होता है. हेल्थ स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, बहुत तरह के स्ट्रेस है. कुल मिला के यही है कि आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो जब आप टाइम मैनेजमेंट और अपना एक गोल सेट करो और उन चीज़ों की तरफ ना जाओ जो आपका टाइम वेस्ट करे और जिनसे आपको जो है फ़ायदा ना पहुँचे. Thank you very much for today's session. You have a great day ahead.